Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about mid-cap mutual fund. In this video we will cover what is mid-cap mutual fund, who should invest in mid-cap mutual fund, what should be the investment tenure in investing in mid-cap mutual fund, how to choose the top performing mid-cap mutual funds. I will do the detailed comparison among my top 3 mid-cap mutual fund. At the end I will also tell you about who is the winner among these top 3 mid-cap mutual fund. So please watch this video till the end. Let's start. First is mid-cap mutual fund. In order to understand mid-cap mutual fund, first you should know about what is mid-cap stocks. So mid-cap stocks are such stocks which is lying between 101st company to 250th company in terms of market capitalization. And what is market capitalization? That is number of outstanding shares into current market price. It will give you the market capitalization. So ranking done on the basis of market capitalization. सबसे बड़ी कंपनी होगी वो नंबर 1 पे आएगी, लाइक रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इट इज स्टैंड्स रैंक 1 होगा उसका. सेकंड इज टीसीएस, तो इट्स रैंक 2. अकॉर्डिंगली जो रैंकिंग हो रही है उसे 101 से लेके 50th कंपनी जो भी होगी उसके बीच में जितने भी स्टॉक्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मिड कैप स्टॉक्स. तो एज पर सेबी जो भी मिड कैप म्यूचुअल फंड होगा उसमें फंड मैनेजर को 65% ऑफ एलोकेशन शुड बी ऑफ मिड कैप स्टॉक. तो मिड कैप कंपनीज वैसी कंपनी होती है जो इमर्जिंग बिजनेस होती हैं, जिनके ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उसके साथ रिस्क भी होता है. इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 7 years फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप म्यूचुअल फंड. द रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर शुड बी हाई, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क एसोसिएटेड होती हैं वो मॉडरेटली हाई होती हैं. इसलिए आपको मिनिमम 7 years का होराइजन रखना है और आपका जो रिस्क एपिटाइट होना चाहिए वो मॉडरेटली हाई होना चाहिए. In this video we will consider only direct plan and growth plan. Direct plan इसलिए क्योंकि direct plan is much cheaper than the regular plan. और यहाँ पे मैं growth plan consider कर रहा हूँ over your dividend and dividend reinvestment plan, क्योंकि growth plan में आपकी compounding ज़्यादा होती है as compared to your dividend and dividend reinvestment plan. Everybody might be waiting for what are the top 3 mid cap mutual fund. Before I announce my top 3 mid cap mutual fund, I just want to clarify that this is not a direct investment advice. These top 3 mid-cap mutual fund I have picked, it is based on my research and observation. You can opt any other mutual fund and do the analysis the way I am doing, or you can drive your own way. So let's continue with the video. My first pick is DSP mid-cap mutual fund. Second one is Axis mid-cap mutual fund. And third one is Kotak Emerging Equity Fund. So in these mid-cap mutual fund, who is the winner? We will get to know about it after full analysis, and we will announce the result at the end. Evaluation methodology. First we will compare the mutual fund on the basis of basic parameter. Second is portfolio diversification, that is on the basis of past performance, and fourth one is on the risk parameter. So we have provided the weightage accordingly. The basic parameter is 25%, portfolio diversification is 10%, past performance 40%, and the risk parameter is 25%. We will allocate the marks on the basis of ranking. अगर rank 1 है तो marks 3 allocate होगा, rank 2 है तो marks 2 allocate होगा, and rank 3 है तो marks 1 allocate होगा. So bear these things into your mind. We will do the analysis. Let's begin. फर्स्ट इज बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन. और बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन में पहला आता है रेटिंग्स. रेटिंग्स जो एजेंसीज होती हैं जैसे केयर है, क्रिसिल है, वैसी रेटिंग्स जो होती हैं वो म्यूचुअल फंड को रेट करती हैं. सो एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेट किया गया इस बार, डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड को 5 स्टार, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को 4 स्टार रेट किया गया. अकॉर्डिंगली हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स दिया है. एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3. डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड को भी रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया. और कोटक इमर्जिंग का रैंक 2 है तो मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है. सेकंड इज एक्सपेंस रेशियो, वो जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड का सबसे कम है, दैट इज 0.58, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 मिला है. सब्सिक्वेंटली सारे हम लोग ने यहाँ पर रेट किया है. थर्ड इज AUM. AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आप देखोगे तीनों ही फंड का बहुत हेल्दी है, इसलिए मैंने सबको रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट कर दिया है. मिनिमम सिप अमाउंट आप जब चेक करोगे एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ 500 से मौका देता है अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, और डीएसपी भी सेम, और कोटक इमर्जिंग 1000 से देता है. इसलिए ईज ऑफ इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर रैंक 1 यहाँ पर एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को दिया है और डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड को रैंक 1 मिला है, जिसके हिसाब से मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. अब आते हैं वैल्यूएशन पैरामीटर पे. यहाँ पर P/B रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू. प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा माना जाएगा.
यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक्स का जो कुमुलेटिव P/B रेशियो है वो सबसे कम 3.06 है, जो सबसे अच्छा माना जाएगा, जिसके वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। अगर वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं तो उसके चांसेस ऐसे हैं कि वो फ्यूचर में और अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बेकार करेंगे, लेकिन ये फ्यूचर में और अच्छा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इसको रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज P/E रेशियो, दैट इज अनदर वैल्यूएशन पैरामीटर, दैट इज प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। और प्राइस टू अर्निंग पर शेयर जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं DSP मिड कैप म्यूचुअल फंड इज आउट परफॉर्मिंग रेस्ट अदर्स। सो यहाँ पर 24.28 है और यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। अकॉर्डिंगली रेस्ट को हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो इज व्हाट, कि आपका पोर्टफोलियो लास्ट 365 डेज में कितना ज़्यादा चर्न हुआ है, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि टर्नओवर रेशियो अगर कम होगा तो ये बताता है फंड मैनेजर कोई भी जो भी स्टॉक्स पिक कर रहा है वो लंबे समय के लिए पिक कर रहा है। अगर लंबे समय के लिए कोई भी आप स्टॉक्स पिक करते हैं और अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं आप लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो टर्नओवर रेशियो आपको जो सबसे कम मिल रहा है DSP मिड कैप म्यूचुअल फंड का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर रैंक 1 दिया है और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। रेस्ट को वैसे ही मार्क्स एलोकेट हुए हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स कितना होगा, सारे का समीशन, टोटल मार्क्स का समीशन। टोटल मार्क्स कितना आ रहा है आप 16 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वो आपको क्या दे देगा, एवरेज स्कोर दे देगा। पैरामीटर्स कितने हैं आपके, 7 हैं। 16 डिवाइड बाई 7 इज 2.428। सिमिलरली DSP का भी आपका आ जाएगा 2.5714 एंड कोटक इमर्जिंग का आ जाएगा 2.1428। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन का जो मैं वेटेज कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज 25%। वेटेड एवरेज स्कोर को निकालने के लिए मुझे इसको 25% उसका लेना पड़ेगा। इसको 0.25 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेज एवरेज जो आ रहा है 0.5357 आ रहा है। सेकेंड इज DSP का 0.6429 आ रहा है एंड कोटक इमर्जिंग का 0.5357 आ रहा है। सेकेंड इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में पहला देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स का जो एक्सपोजर कितना है और टॉप 5 स्टॉक्स का एक्सपोजर कितना है। टॉप 5 स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 20.91 है और 20.12 एंड 20.91 ऑलमोस्ट सिमिलर है। टॉप 10 स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है वो एक्सिस और कोटक सेम है और DSP मिड कैप का 36.7 है और एक्सिस मिड कैप और DSP मिड कैप नंबर ऑफ स्टॉक्स में जो इन्वेस्टेड है 48 एंड 45 है और सिर्फ कोटक इमर्जिंग है जो 68 है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये ज़्यादा डाइवर्सिफाई लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया और एक्सिस और DSP मिड कैप ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए उसको रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज टॉप 3 सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, केमिकल इंडस्ट्री एक सेक्टर है। तो टॉप 3 सेक्टर्स का जो एक्सपोजर है वो कितना है, वो जितना कम होगा वो उतना बेटर होगा। हो सकता है कि वो सेक्टर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपका एक्सपोजर उसमें है तो आप एक समय के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगर सेक्टर में कुछ भी खराब न्यूज़ आ गया तो उसके साथ आपका जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वो काफ़ी नीचे आ सकता है। इसलिए जितना ये टॉप 3 का जो एक्सपोजर जितना डाइवर्सिफाई हो वो उतना बेटर है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट तीनों म्यूचुअल फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए सारे को मैंने यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। अब नेक्स्ट आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एलोकेशंस कितना है। एक्सिस मिड कैप में आप देखोगे लार्ज कैप में 18.25% और मिड कैप में 70.62 है, लेकिन स्मॉल कैप में एक्सपोजर है ही नहीं। मीन्स ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है लार्ज एंड मिड कैप के लिए, इसलिए इसका डाइवर्सिफिकेशन मैं उतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने रैंक 3 दिया और मार्क्स 1 एलोकेट किया है। और जो सबसे अच्छा जो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़। यहाँ पर देखिए आपका मिड कैप में 69.69% है। मैंने आपको पहले ही बताया एज पर सेबी आपको मिनिमम 65% का तो एक्सपोजर रखना ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑल 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आर कंप्लाइंग ऑन दैट फैक्ट। यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। रेस्ट को अकॉर्डिंगली वहाँ पर मार्क्स मैंने एलोकेट किया। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मार्क्स क्या होगा, समीशन ऑफ दिस डिवाइड बाई योर नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 3, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2। सिमिलरली DSP का कितना आ जाएगा, इसका समीशन डिवाइड बाई 3.33 आ गया। कोटक इमर्जिंग का 9 डिवाइड बाई 3। मैं आपको जैसे मैंने बताया था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो मैं वेटेज दे रहा हूँ दैट इज 10%
और 10% के हिसाब से अगर हम 10% इसका लेंगे मीन्स इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका वेटेड एवरेज स्कोर आ जाएगा 0.2, सेकेंड इज 0.233, थर्ड इज 0.3. Coming to the favorite part of investor and the basic crux of investing, that is past performance. Past performance पे हम लोग कंपेयर करेंगे 1 year, 3 year, 5 year, 7 year and return since launch. तो ये भी देखेंगे कि वो अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज से कैसा परफॉर्म कर रहा है. So in 1 year, DSP Mid Cap Mutual Fund is outperforming rest 2, that is return of 17.40%. वो अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है. बेंचमार्क का जो रिटर्न है 15.22 और कैटेगरी का जो एवरेज है 12.37. यहाँ पे जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो रिटर्न है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है और ना ही एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है इन 1 year रिटर्न परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज 3 year. 3 year में आप देखेंगे एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज आउट परफॉर्मिंग रेस्ट 2 और यहाँ पर इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है. डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड इज 5.96 एंड कोटक इमर्जिंग इज 4.18. क्लियरली ये तीनों म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट कर रहा है. नेक्स्ट इज 5 year रिटर्न परफॉर्मेंस. 5 year रिटर्न परफॉर्मेंस में डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड इज आउट परफॉर्मिंग रेस्ट 2, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है. अकॉर्डिंगली रेस्ट 2 को हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है. ये तीनों म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर रहा है. नेक्स्ट इज 7 year रिटर्न. 7 year रिटर्न के हिसाब से जो सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का आ रहा है, दैट इज 21.93. सेकंड इज 21.12 एक्सिस मिड कैप का और डीएसपी का 20.93 है. अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग ने मार्क्स एलोकेट किया है और अपने ये कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को भी आराम से बीट कर रहा है. तो रिटर्न सिंस लॉन्च में आप देखोगे आप एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज आउट परफॉर्मिंग रेस्ट 2 और कोटक इमर्जिंग इज 16.21, इसलिए इसको यहाँ पर रैंक 2 मिला है और मार्क्स 2 एलोकेट किया गया है. और डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 16.1 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 3 मिला है और मार्क्स 1 मिला है. So all 3 mid cap mutual funds are performing very well and they are clearly beating their benchmark and their category average. क्योंकि हम लोग यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने 5 हैं. टोटल मार्क्स यहाँ से हम लोग सबमिशन करेंगे. सबमिशन करने के बाद आ रहा है आपका 12 डिवाइड बाई 5 इज 2.44. डीएसपी का आ जाएगा 10 बाई 5 और कोटक इमर्जिंग का आ जाएगा 1.60. मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफॉर्मेंस का जो मैंने वेटेड एवरेज कंसिडर किया है वो 40% का है. 40% इसका लेंगे हम लोग मीन्स इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेटेड एवरेज स्कोर आ जाएगा आपका 0.96 एंड इज 0.80 एंड कोटक इमर्जिंग का आ जाएगा 0.64. Now comes the risk analysis. Many of the investors doesn't look on this part. Really, the investor go with that particular mutual fund who has the good past performance record. But past performance is not the indicative of future results. अगर performance काफी अच्छा है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि वो क्या अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है. क्या वो बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है, क्या ये उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है. कि मार्केट अगर अच्छा कर रहा है तो मेरे परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन गिरते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा ना गिरे, इसलिए रिस्क एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इन रिस्क एनालिसिस पहला आता है मीन. मीन क्या होता है? मीन इज नथिंग बट योर एवरेज रिटर्न. तो ये जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. यहाँ पर एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज 14.02, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड इज 8.91, रैंक 2 एंड मार्क्स 2 अकॉर्डिंगली रेस्ट को मिला है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों ही म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को अच्छी तरह से बीट कर रहा है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? आपका रिटर्न जितना डेविएट हो रहा है अपने मीन से उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं. तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा मीन्स फंड वोलेटाइल हो जाएगा, इसलिए वो फंड उतना अच्छा नहीं होगा. तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज 19.14 और डीएसपी मिड कैप का 22.38 है और कोटक इमर्जिंग का 24.37 है. सो क्लियरली एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट किया है. अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुए. नेक्स्ट इज शार्प रेशियो. शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड यूनिट ऑफ रिस्क टेकन. सो ये जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. सो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 मिला है. ये तीनों म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छा कर रहा है. नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो. सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर बैड रिस्क टेकन. तो ये भी जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. तो एक्सिस म्यूचुअल फंड इज अगेन क्लियरली परफॉर्मिंग रेस्ट 2, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और रेस्ट 2 को भी हम लोग वैसे ही मार्क्स एलोकेट किए हैं. नेक्स्ट इज बीटा. बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वोलेटिलिटी को. कोई फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से. तो ये जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा. यहाँ पर आप देखिए एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड का 0.71 है और डीएसपी का 0.84 है और कोटक का 0.92 है.
अगेन क्लियरली यहाँ पर एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज आउट परफॉर्मिंग रेस 2, यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा क्या होता है कि आपका रिटर्न कितना ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू योर बेंचमार्क। सो ये जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। तो यहाँ भी आप देखेंगे एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड इज 8.45, इज ह्यूज, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 यहाँ पर एलोकेट हुआ है। और डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड सिमिलरली यहाँ पर रैंक 2 है और मार्क्स 2 पे एलोकेट किया गया है। यहाँ पे हम लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मार्क्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय योर पैरामीटर्स। तो 18 यहाँ का समेशन डिवाइड बाय 6 इज 3। यहाँ भी एवरेज मार्क्स देखिए यहाँ पर 2 ही होगा क्योंकि टोटल का समेशन अपॉन योर पैरामीटर इज डिवाइड बाय 6 इज 2, एंड यहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ पर 1 मिला है। इस एनालिसिस में मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो वेटेज हम लोगों ने डिसाइड किया था दैट इज 25%। यहाँ पर हम लोग 3 का हम लोग 25% लेंगे, मीन्स इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0.75 योर वेटेड एवरेज स्कोर। यहाँ भी डीएसपी का जो हो रहा है 0.5 हो रहा है एंड कोटक इमर्जिंग का आ रहा है 0.25। नाउ एवरीवन इज वेटिंग फॉर हु इज द विनर। तो हमारे पास सभी फ्रंट पे जितना भी वेटेड एवरेज स्कोर है वो आ गया है। उनके समीशन से जो पहले स्थान पे आएगा उसका जो एवरेज स्कोर होगा दैट इज 2.446, सेकंड नंबर पे जो होगा वो 2.176 पे होगा और थर्ड वन इज 1.726। तो अकॉर्डिंगली जो फंड जो थर्ड पोजीशन पे लाई कर रहा है दैट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है दैट इज डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड, और जो फर्स्ट पे आ रहा है दैट इज एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। So now again I am saying this is not a direct investment advice. These 3 mutual fund I have selected because I feel that these mutual funds has performed very well. After my analysis and observation, it may perform in the same fashion that they have done earlier. You can go with any other mutual fund, but don't take any direct advice of investing in any mutual fund. Do your own research and consult your financial advisor before investing. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। If at all you have not subscribed my channel, you can subscribe my channel for the latest financial videos. Please give your feedback in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos. And if at all you have any query or doubt, you can also put it in the comment box. So thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.